So hello class 12, today we are going to start with the application of derivatives with introduction of exercise 6.2, that is increasing and decreasing functions. Now increasing and decreasing functions is one of the most important topic of your application of derivatives. Now let's start with some linear functions better. Suppose first of all this is your, say fx is equal to x plus 2. Everybody knows that this is your linear function, and fx is equal to minus x plus 2 is again a linear function. But can you see, if you compare this linear function with your y is equal to mx plus c, what is the slope of this linear function? Comparing this y is equal to mx plus c form straight line में you people have read it that y is equal to mx plus c form में आपको अगर slope निकालनी है तो what is the slope better? Slope is here 1, that is positive. So slope of this function is positive, that is 1. So positive 1 है तो slope is positive. But here if you compare it with mx plus c, so slope is what? M is minus 1, so negative. Slope for this function is positive. Slope for this function is negative. Got it? Here up to I think is clear. Now see, suppose I want to draw the graph of this function, this linear function. I have taken few values also, like I put x minus 2, so y is, or fx is 0, then x 0, then y is 2, then 1, y is 3, and I have plotted it. Can you see, यहाँ से अगर आप चेक करो बेटा, x की वैल्यू आई एम गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, माइनस 2 फिर 0 फिर 1 बढ़ती जा रही हैं x की वैल्यूज़. तो कैन यू सी ग्राफ में भी आप चेक कर सकते हो, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यूज़ भी बढ़ती जा रही हैं. एंड यू कैन सी द ग्राफ इज़ गोइंग लाइक दिस, ऊपर को बढ़ता जा रहा है. मीन्स वॉट, मैंने एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करी तो वाई की और एफ एक्स वन एंड द सेम थिंग, द वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यू कैन सी इट हेयर. एंड सिमिलरली फॉर दिस I have drawn a graph of this function fx is equal to minus x plus 2, and this time the graph values are I have taken like this, x minus 2, again मैंने same values ही रखी और ये मैंने बढ़ा दिया, minus 2 0 1, x की values बढ़ती जा रही हैं. But can you notice that the values of fx is decreasing 4 2 1, these values are increasing but these values are decreasing. But here what is happening, the values of these are increasing, x की increase हो रही तो y की या fx की भी increase हो रही है. But यहाँ x की increase हो रही है तो y की क्या हो रही है, decrease हो रही है. Now this is the main thing, and the graph is going like this way, कि x की वैल्यूज़ हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इधर को बढ़ती जा रही हैं, तो y की वैल्यूज़ नीचे को आती जा रही है, कम होती जा रही है. हेयर x की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही थी तो y की वैल्यूज़ भी बढ़ती जा रही थी. कैन यू सी? नाउ सी व्हाट है. सो जनरल डेफिनेशन इज, इफ ऑन इंक्रीजिंग एक्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और ऑन डिक्रीजिंग एक्स एफ एक्स इज डिक्रीजिंग. मतलब अगर मैं इस सब से चलूँ तो एक्स की एक्स की वैल्यूज़ मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रीज़ करती जा रही हूँ, तो एफ एक्स भी डिक्रीज़ होता जा रहा है. और यहाँ पे x की वैल्यूज़ में डिक्रीज़, अगर हम इस सब से देखें कि हम लोग x की वैल्यूज़ को क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो एफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है. सो मीन्स वॉट, इफ़ ऑन इंक्रीजिंग एक्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और ऑन डिक्रीजिंग एक्स एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, सच अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन. गॉट इट? अगर बेटा मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ को बढ़ाती जाऊँ और एफ एक्स की भी बढ़ती जाएंगी, और अगर मैं x की कम करती जाऊँ तो यू कैन नोटिस दैट एफ एक्स की भी कम होती जाएंगी. तो ऐसा फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन. गॉट इट? एंड इन दिस केस आई हैव रिटन हेयर ऑल्सो, बट इफ ऑन इंक्रीजिंग एक्स एफ एक्स इज डिक्रीजिंग और ऑन डिक्रीजिंग एक्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सो एफ एक्स इज सेड टू बी decreasing function. Got it? But every time it's not possible to draw graphs. We will discuss these things later on. But यहाँ मैंने linear functions के लिए तो बहुत simple था. You people can draw the graph and you can see. और अगर मैं ग्राफ नहीं भी ड्रॉ करती तो अगर मैं यहीं से आपको बोल लूँ कि कैन यू सी स्लोप इज़ व्हाट, पॉजिटिव, तो आप बोलोगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो वेन एवर द स्लोप इज़ पॉजिटिव ऑफ अ फंक्शन, द स्लोप ऑफ द फंक्शन इफ इज़ पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे, द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर स्लोप नेगेटिव है तो आप क्या बोलोगे, स्लोप अगर नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सिमिलरली देयर इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट स्लोप. आपने फिफ्थ चैप्टर यू पीपल हैव डन. स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअली इज व्हाट,
derivative of the function. We will just discuss it on in the next topic, now in the next few minutes. So now let us take one more example. Suppose y is equal to sin x we have taken this time. Now graph of sin x, most of you people know how to draw the graph of sin x. अगर मैं नहीं भी ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो मैं बताऊँगी, बट पहले तो हम लोग ग्राफ से इसको चेक कर रहे हैं बेटा. नो ग्राफ ऑफ sin x यू कैन सी हियर y इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट y इज इक्वल टू 0, मैंने x की वैल्यू 0 ली, π/2 ली, देन आई हैव टेकन पाई, देन 3π/2 एंड देन 2π. सो ऑन टेकिंग दीज वैल्यूज़ सबको ग्राफ आता है दिस साइन एक्स का. साइन 0 पे 0 ही होता है, तो साइन जब 0 लिया तो y की वैल्यू 0 थी. साइन π/2 इज़ 1, तो ये y की वैल्यू 1 होगी. देन साइन पाई इज़ अगेन 0, सो अगेन 0 हो गया y. देन साइन 3π/2 इज़ -1, तो यहाँ पे -1 आ गया. साइन 2π इज़ 0 अगेन, तो 0 y की वैल्यू 0 होगी. नो कैन यू सी, अगर आप चेक करो बेटा तो 0 to π/2, 0 to π/2 में दिस फंक्शन इज़ वॉट, ग्राफ अगर आप देखो तो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग. सो 0 to π/2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप ग्राफ से चेक कर सकते हो. बट मैंने यहाँ लिखा है स्लोप भी पॉजिटिव है. अब स्लोप निकालने का एक तरीका तो यही है आपका कि आप लोग f'(x) निकालते हो, बट वैसे आप स्लोप चेक करो तो स्लोप इज़ वॉट, एक्चुअली स्लोप इज़ वॉट आई हैव रिटन हियर, स्लोप इज़ द टेंजेंट. इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, स्लोप एक्चुअली इज f'(x), दैट इज क्या है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो f'(x) भी है और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी है. वो आप तब करोगे जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, बट यहाँ से अगर आप स्लोप चेक करो, स्लोप क्या है, टेंजेंट टू द कर्व. सो स्लोप एक्चुअली इज व्हाट, टेंजेंट टू द कर्व. नो बेटा अगर आप ये टेंजेंट टू द कर्व है तो आप चेक करो क्या है, यहाँ पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करा ये, तो कैन यू सी दिस लाइन, ये जो टेंजेंट वाली लाइन है, ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, दिस एंगल इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिस लाइन इज मेकिंग सम एंगल. उस एंगल का अगर आप टैन लो तो डैट टैन गिव्स यू द स्लोप. ये अपने 11th में अपने 10th चैप्टर में चीज़ें पढ़ी भी हुई हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ व्हाट दैट. तो स्लोप किसी भी लाइन, किसी भी कर्व के ऊपर आप स्लोप ड्रॉ करते हो तो दिस वे. सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हो तो ये ऐसा चल जाए. कैन यू सी दीज ऑल आर मेकिंग, अगर आप इसी को यहाँ पे लो, ये भी एक्स एक्सिस ही है क्योंकि पैरेलल एंगल्स ही बनेंगे, या आप इस स्लोप को बढ़ा के भी नीचे लेके जा सकते हो, स्लोप को बढ़ा के नीचे, तो आप देखो ऑलवेज यू आर गेटिंग एक्यूट एंगल्स. सो यहाँ पे क्या, स्लोप जब एक्यूट बन रही है, मतलब थीटा इज सम एंगल 90 से छोटा एंगल बना रहा है, तो टैन थीटा इज व्हाट, पॉजिटिव. तो मीन्स व्हाट, स्लोप के अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. और आप वैसे भी ग्राफ से भी देखो तो आपका ये बढ़ रहा है, तो 0 to π/2 में बढ़ रहा है ग्राफ, तो इट मीन्स ये इंक्रीजिंग है. स्लोप भी पॉजिटिव है. आई एम टेलिंग दिस थिंग अगेन बिकॉज आई थिंक दिस आई वॉन्ट टू क्लियर अ लिटल मोर. बेटा कोई भी ग्राफ ऐसे जा रहा है, आप उसकी जब स्लोप ड्रॉ करते हो तो आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट. अब स्लोप क्या है, उस वो जो एंगल, ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, उस एंगल का जब आप टैन थीटा देते हो तो डैट इज कॉल्ड योर स्लोप. तो टैन थीटा ऐसे एंगल्स का क्या होगा, ये सब एंगल्स क्या हैं बेटा, ये सब एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90. सो लेस देन 90 में तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी व्हाट, पॉजिटिव. टैन थीटा लेस देन 90 में तो, और 90 तक तो क्या रहता है, पॉजिटिव आंसर्स देता है. सो जब भी स्लोप आपकी पॉजिटिव आंसर दे रही है, इट मीन्स एक्यूट एंगल बन रहा है, तो इट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. नो अगर आप यहाँ पे देखो, इस पे क्या हो रहा है, यहाँ से π/2 टू π ये नीचे जा रहा है. अब अगर आप यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करोगे, ये सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये कैसा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज व्हाट, मोर देन 90. तो मोर देन 90 में यू कैन नोट, यहाँ पे जब 90 से ऊपर सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो टैन क्या हो जाता है, वो तो नेगेटिव हो जाता है. टैन इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. तो अगर एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यहाँ पे आप जितना भी ऐसे वाले ऐसा ग्राफ जब भी होएगा तो आप टेंजेंट ये टेंजेंट ड्रॉ करा किसी भी पॉइंट पे, तो कैसी स्लोप यू आर गेटिंग, वो आपका जो एंगल बन रहा है डैट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180. सो वहाँ पे स्लोप नेगेटिव आ रही है. गॉट इट. सो 0 to π/2 में ग्राफ यू कैन सी इज इंक्रीजिंग. सो इंक्रीजिंग था क्योंकि स्लोप भी पॉजिटिव थी. क्यों पॉजिटिव थी, आई हैव एक्सप्लेन्ड. नो
पाई बाय 2 टू पाई में ग्राफ नीचे आ रहा है, और अगर आप चेक करो तो आपकी स्लोप भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और आप यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा है पाई बाय 2 टू पाई डिक्रीजिंग, अगेन पाई टू 3 पाई बाय 2 में भी डिक्रीजिंग ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा नीचे ही जा रहा है ग्राफ। तो अगर आप यहाँ पे भी कोई ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो दिस वे, तो वो कैसा एंगल बनाएगा, वो एक्स एक्सिस के साथ इज मोर देन 90 का एंगल बन रहा है, सो स्लोप इज नेगेटिव। तो अगेन डिक्रीजिंग हो गया इस फंक्शन में। 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई में क्या हो रहा है, तो फंक्शन इज अगेन इंक्रीजिंग। और अगर आप यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यू कैन सी ये एक्सिस से आप यहाँ पे ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो एक्सिस, तो दिस एंगल इज व्हाट, लेस देन 90। गॉट इट? सो this will it in clear you what is your relation between the slope and what is the relation between increasing decreasing function. I am repeating, अगर slope बेटा positive है तो function increasing है, slope negative है तो function decreasing है, but I am telling you every time it's not possible for us to find out the slope, to make the graph of the function. So I'll tell you the rule how to find out it. Now there are two types of questions in this chapter. Type 1 is you will get the questions like this: check whether function is increasing or decreasing in the given interval, कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आपको ये चेक करके बताना है। या टाइप 2 क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस: फाइंड द इंटरवल इन विच, अब यहाँ पे इंटरवल आप खुद निकालोगे, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमने बोला फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंटरवल द क्वेश्चन विल टेल यू कि इस इंटरवल में आप बताओ, क्वेश्चन में ही दिया होगा कि इस इंटरवल में आप शो करो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो बताएंगे आपको। और सेकंड टाइप में वो बोलेंगे किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट। सो हेयर इन दीज क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ्स। सी आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो, आई हैव रिटन चेक वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी आप देखो लीनियर फंक्शंस का ग्राफ इज सिंपल टू मेक, साइन एक्स का ग्राफ भी आपको आता था, बट इसका ग्राफ कैन यू ड्रॉ इजीली? इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस ग्राफ क्योंकि इट विल टेक मच टाइम टू सॉल्व इट, एंड देन सो देयर इज सम अनदर वे वर्किंग रूल टू फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड वॉट इज दैट वे वी विल डिस्कस इट। Example 9 of your book, first of all I am taking. Now is it proved that the function given by fx is equal to cos x is strictly decreasing in 0 to pi? Is strictly decreasing in 0 to pi. Now see here, बेटा in 0 to pi what is it? हमने उसने बोला आप ये फंक्शन को given by fx is equal to cos x. The video is getting longer, so I am going to discuss it in the next video. Thank you.